Good morning, everyone. So today we are going to learn MongoDB. Basically, we are connecting our database MongoDB with our backend using plain JavaScript and going to perform a CRUD operation through JavaScript and see the changes which we are got into the database. So what we are doing, we are just connect. Firstly, what we are doing, we are connecting our JavaScript code or a backend code with a database. For this, we need to make a server, or not a server, but just make a file, JavaScript file whose name could be index.js to connect our backend with database. We need to require a library whose for this we need mongoose library, which is the ODM library. It is not only the one ODM library, there are many of them. ODM, O stands for object, D stands for data, and it stands for modeling. For object data modeling. So data here, object is the key value pair, data is the data collection of information, and modeling comes from the word model. So what is model? Model is something which is a class which is used to create a document. So what is document? So document, just like in a MySQL database, we have tables, and in the tables we have rows, which is also known as tuples. So same as in non-SQL MongoDB, we have document in the place of rows where we put the data JavaScript object, which is converted into JSON data internally by the MongoDB. And JSON data is not read by the humans, it is only read by the machines. Um, so it is a document, and the collection of document is collections. Means collections is we can relate with the table in a MySQL or relational database. Okay, may I think that you got the idea of document collection model. We need to install a library, npm install mongoose. Till it start, we need to enter into our Mongo shell. You need to download from Google Mongo shell. You need to download. If you have MongoDB, then uh, it was advised to you to have a Mongo shell through which we can perform with the help of terminal. Here, test is a temporary database. We need to check how many database we have. Currently, we have 3. These are by default, not made by me also. It was by default. Let's take a time to install Mongoose library. After getting installed, we have takes a time. Wait for a second. I also want to share that in this video, we are also performing CRUD operation as I told you earlier. We are along with we learn. Firstly, we learn about what is Mongoose, how we are connecting. As I told about Mongoose, Mongoose is a ODM library, object data modeling. Then we have model. Model is a class which is used to create document. Then what is document? Document is what rows, tuple जो मैंने बताया अभी आपको. Then we have collection, means table compared to relational database if we do so. फिर उसके बाद में हम मंगूस पढ़ लिया, उसके जो डेफिनेशन हो गई, उसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे. कनेक्शन के में क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. फिर स्कीमा के बारे में देंगे, बारे में जान पता करेंगे. शायद मैंने कुछ गलत लिखा है क्योंकि एनपीएम वाज डिपिक्टेड मोनगोस, मैंने स्पेलिंग गलत की है. मोन ये मोनगोस मैंने कुछ गलत डाउनलोड कर लिया है. मोनगोस ऐसा नहीं था, मोन ये होता है. मैंने यहाँ पे और कुछ लिखा, मतलब ये और कुछ कर रहा है. लेकिन नो लॉन्गर जिसको टर्मिनेट ही करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा.
इसका नाम चेंज करके डिलीट कर रहा हूँ, रीनेम। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ और फोल्डर है, उसका नाम मैच हो जाएगा। मैंने गलत पैकेज इंस्टॉल कर लिया था, मोंगूज मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, और वो इंस्टॉल हो रहा था मेरे टर्मिनल। मेरे को लिखना था npm इंस्टॉल ऑन पुश। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, अब सही लिखी है ना? हाँ, मैं सोच ही रहा था व्हाई इट टेक्स टाइम, यूजुअली इट वाज नॉट। फिर देन वी आर गोइंग टू लर्न स्कीमा। स्कीमा इज, स्कीमा इज अ डिजाइन। ओके, डिजाइन जहाँ पे हमारा टेबल कैसे देखेगी, उसमें किस तरह की रोज इंसर्ट होंगे। हमारे पास टेबल भी नहीं है, रोज भी नहीं, पर नॉन एसक्यूएल में टेबल्स मतलब हमारा कलेक्शन, कलेक्शन किस तरह का होगा, उसके अंदर किस तरह का डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट में डेटा किस तरह का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, वो सब स्कीमा में तो डिजाइन बताते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट इन MongoDB we do not have schema. By saying this I mean कि हमारे पास होता है स्कीमा, पर हम when we are using Mongo shell we can interchange the property और फील्ड। जैसे कि फील्ड मतलब क्या होता है, नेम एक फील्ड है, एज एक फील्ड है, मार्क्स एक फील्ड है, सब फील्ड है, तो हम इसको चेंज कर पा रहे हैं नेम की जगह। हम वो चेंज मतलब हम यदि नेम आदित्य लिखेंगे, मान लो मेरा नाम आदित्य है, तो नेम आदित्य लिखा। हमारा स्कीमा कैसे बनाया था, हमने नेम एज और ये सब बनाया था, पर हम ऐसा कर सकते थे मोंगो शेल में कि पहले मैंने किसी यूजर के लिए पहले नेम दे दिया, फिर एज दे दी, फिर मार्क्स दे दी, फिर दूसरे यूजर के लिए मैंने क्या किया, पहले मार्क्स दे दी, फिर एज दे दी, फिर नेम दे दिया। ऐसे इंटरचेंज यूज कर सकते हैं। उसमें वो नहीं था, स्कीमा का मतलब ऐसा कॉन्स्टेंट नहीं था कि ये हाँ इस तरह का रूल फॉलो होगा। बट टू बी अ गुड डेवलपर हमें स्कीमा बनाने से उसी हिसाब से डेटा पुट करना चाहिए। ओके, इंस्टॉल हो गया। आई थिंक आई वेस्ट योर टाइम because of installing. I need to install it prior also. So हम इसे एक रिक्वायर कर लेते हैं, और रिक्वायर अब जो हम एक लिखेंगे पुश डॉट कनेक्ट, mongoose डॉट कनेक्ट, हम यहाँ पे एक URL लिखेंगे mongo db 127.0.0.1 इतना 2107 टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट क्या है, टेस्ट हमारे पास एक वो है डेटाबेस है। अभी हमारे पास ये टेम्परेरी डेटाबेस, यहाँ पे समझ लो टेम्परेरी डेटाबेस, और हमें इसकी का कुछ भी डेटाबेस का नाम, जैसे हमें कॉलेज देते हैं, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि शो डेटाबेस में, शो डेटाबेस लिखा हो उसमें नहीं आ रहा। ये लिखने से डेटाबेस, या फिर मैं इसको रन भी करता हूँ तो भी डेटाबेस नहीं क्रिएट होगा। उसको क्रिएट करने के लिए मुझे एक स्कीमा बनाना पड़ेगा, मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर डेटा पुट करना पड़ेगा, और वही हमारा CRUD ऑपरेशन, मतलब पहले क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें स्कीमा बनाना पड़ेगा। अब यह जो प्रोसेस है ये असिंक्रोनस प्रोसेस है, जो रिटर्न करेगी मुझे प्रॉमिस। ठीक है, तो मुझे इसको ये असिंक फंक्शन के अंदर लिखूंगा मैं, असिंक फंक्शन। इसका नाम नेम दे देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू नीड टू राइट द नेम फॉर दिस। देन आई एम राइटिंग द this mongoose dot connect, it returns me the promise. I'm going to catch it. If the promise is going to be resolved, then the next thing what I do with this is console.log मैं बोलता हूँ connected connected else। यहाँ पे लिखना पड़ता है मैं main dot then or dot catch error console.log error। ओके, ये हमारा हो गया, हमारा कनेक्शन हो गया सक्सेसफुल। इफ यू वांट टू चेक वी राइट अ कमांड नोड index.js, नोड index.js से और कुछ एरर आया ना, we need to print the error, what was error with this error। मैं वापस लिखूंगा
नॉट इंडेक्स डॉट जेएस। क्या रेफरेंस mongoose इज नॉट डिफाइंड वेयर। अच्छा, ओके। mongoose की स्पेलिंग मैं बार बार वापस, आई मेक अ मिस्टेक विद दिस mongoose है। mongoose इधर सही है मेरा। यहाँ पे 2107 नहीं होता, वो 27017 होता है। 27017। इसे हम mongoose की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि हमें क्या लिखना पड़ता है कनेक्ट करने के। नो नीड टू रिमेम्बर इट। ये तो पर इतना ये लोकल होस्ट है। इफ यू फॉरगॉट व्हाट आई नीड टू राइट इट, ये तो हमें याद रहता है हमेशा। लोकल होस्ट लिखते तो ये इसे लिखते ही है। टू फॉरगेट देन कैन चेक इट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट और इनटू द डॉक्यूमेंटेशन। नाउ आई क्लियर द कंसोल देन राइट, आई थिंक नाउ इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड या। अभी तो हमारा सिर्फ इसका साथ इससे कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब ऐसा कि डेटाबेस आ गया हमारे पास, अभी भी डेटाबेस तो नहीं है। इसको क्लियर कर देता हूँ। यू आर एबल टू सी इट क्लियरली, यहाँ पे अभी डेटाबेस आया नहीं। अब मुझे डेटाबेस बनाने के लिए स्कीमा बनाना पड़ेगा। स्कीमा मतलब मैंने यूजर स्कीमा नाम दे दिया। ठीक है, मैं एस को कैपिटल लिखना चाहता हूँ। या यूजर स्कीमा न्यू स्कीमा बनाने के लिए हम यूज करते हैं mongoose डॉट स्कीमा। स्कीमा मतलब डिजाइन कैसा दिखेगा हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, है ना। तो नेम होगा। अब नेम नेम कैसा होगा, तो उसमें नेम का जो टाइप होगा वो तो स्ट्रिंग टाइप का होगा। We want the name to be string, then टाइप की स्पेलिंग गलत लिखी है, देन और क्या चीज कॉन्स्टेंट हमें ये रिक्वायर्ड फील्ड हमेशा रिक्वायर ही करनी है। रिक्वायर्ड 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 ट्रू, ये हमेशा रिक्वायर ही मतलब यू नीड यू डू नॉट मेक इट एम्प्टी। Do not going to put you are not going to put it empty, okay। एज में टाइप हमारी नेम नंबर होगी क्योंकि एज इज नंबर। और मिनिमम एज हमारी मान लीजिए 13 होनी ही चाहिए। यदि इससे कम होती है तो हम एरर देगा, और एरर क्या देना चाहते हैं वो भी हम बता सकते हैं। तो हम देना चाहते हैं नॉट एलिजिबल, मतलब यदि आपकी एज 13 है तो आप इस वेबसाइट के लिए, इस डेटाबेस में आपका डेटा एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नॉट एलिजिबल, सॉरी इफ आई मेक अ स्पेलिंग मिस्टेक। या इतना हुआ हमारा। हमने क्या कर लिया, एक स्कीमा बना लिया। स्कीमा मतलब डिजाइन। अब हमारा डेटा कैसा दिखेगा, डेटा में तो ये फील्ड आएगी, नेम आएगी, एज आएगी। अब हमने स्कीमा बना लिया। अब हमें कलेक्शन बनाना। कलेक्शन मतलब क्या है, जिसके अंदर हमारी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो उसको हम बनाएंगे मॉडल की मदद से। मॉडल इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। और हम कलेक्शन बेस ही बनाएंगे। हम लिखेंगे यू कैपिटल यूजर। कलेक्शन मतलब ये टेबल का नाम। जैसे ये क्लास है, ये मॉडल है। अभी जो यहाँ पे लिखा है ये क्लास है, ये यूजर जो लिखा है ना ये क्लास है, मॉडल है। ठीक है, अब इस मॉडल को बनाना है हमें, क्योंकि मॉडल की मदद से ही हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे mongoose डॉट मॉडल। फिर हम हमारे कलेक्शन का नाम, ये जो ये यूजर है कलेक्शन है। अब मैं 2 सेकेंड ना पहले लिख दूं। हाँ, यूजर स्कीम स्कीम यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूँ ये जो यूजर है ये तो मॉडल है, मॉडल। ठीक है, उसके अंदर यह यूजर जो है यहाँ पे ये जो है ये हमारा कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब टेबल समझ सकते हैं। अब मैं इसको जैसे इंटर करता हूँ कंट्रोल C, इंडेक्स यहाँ पे कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड होगा। और अब यहाँ पे हम यदि हम यहाँ पे यदि शो डेटाबेस करें, अब देख सकते हैं अब हमारे पास कॉलेज नाम का डेटाबेस आ गया, जबकि अभी तक हमने इसमें डेटा इंसर्ट नहीं किया। जब हम मोंगो शेल की मदद से इसमें एक डेटाबेस बना रहे थे तो उसमें हमें सबसे पहले डेटा क्रिएट करना पड़ रहा था, क्योंकि हम उसमें स्कीमा नहीं बना रहे थे। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें डेटा इंसर्ट नहीं करा और फिर भी हमारा डेटाबेस का नाम आ रहा है, क्योंकि हमने क्या बना दिया, कलेक्शन बना दी। कलेक्शन मतलब टेबल बना दी। किसके अंदर टेबल बनी, कॉलेज नाम के डेटाबेस में, क्योंकि कॉलेज नाम का डेटाबेस में यहाँ दिख रहा है। अब क्या कलेक्शन बनी है, मतलब यूजर नाम की टेबल बनी है क्या उसके अंदर, तो शो हम देखते हैं। तो हम जाएंगे यूज कॉलेज डेटाबेस, यस लिखा, तो हम स्विच टू डेटाबेस कॉलेज, कॉलेज नाम के डेटाबेस में आ गए, है ना। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से शो कलेक्शन की, कौन कौन सी इसके अंदर टेबल्स है, शो कलेक्शन, इसके अंदर यूजर्स नाम की टेबल है। अब आप देख रहे होंगे तो मैंने तो यहाँ पे कैपिटल यू लिखा है और यूजर लिखा है, यहाँ पे यूजर्स आ गया, उसमें भी यू स्मॉल आ गया। तो ये कन्वेंशन है कि हम जब भी नोट जेएस में हमारे मॉडल और कलेक्शन का नाम लिखते हैं, उसमें कैपिटल जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और सिंगुलर होता है, और यहाँ पे आके वह स्मॉल हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। यहाँ पे यूजर्स हो गया, यूजर था। अब हम एक डेटा ऐड करेंगे, एडिंग वन डेटा, एडिंग वन डाटा डेटा, एडिंग वन डेटा। तो हम क्या लिखेंगे, डेटा आपको ऐड करना है तो हम एक क्या बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे। डॉक्यूमेंट में डेटा ऐड होता है, तो ये हमारा यूजर वन एक डॉक्यूमेंट है, इसका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट। अब न्यू यूजर, अब दो से भी ना, यहाँ पे जो यूजर वन है वो तो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कोई डेटा है या डेटा आएगा। यह यूजर मॉडल है, ये यूजर मॉडल है, और इसको हम कलेक्शन भी बोल सकते हैं कि नाम से हमारे मॉडल का नाम कलेक्शन ही होता है। तो ये वैसे तो मॉडल ही है। मॉडल मतलब एक क्लास है, क्लास ही है। यहाँ पे न्यू से समझ में आ रहा है, क्लास है जिसका हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट है, एक क्लास है, मॉडल। अब हमें इसके अंदर कुछ डेटा पुट करना है। अब हम एक्चुअली डेटा पुट करना जा रहे हैं, और हमारी पहली चीज इसके अंदर करने जा रहे हैं जिसका नाम है CRUD ऑपरेशन, क्रिएट। क्रिएट कर रहे हैं, डेटा क्रिएट। अब जैसे मैंने इसमें दिया नेम, अब मैं नेम दूंगा, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नेम दे दिया कुणाल सिंह, कुणाल सिंह, ओके। Then I put age. What could be the age? His age is 15. No, no, 18 कर देते हैं, 18। कुणाल सिंह, his age is 18। अब मैं रन करता हूँ, ये पहले से कनेक्टेड है, इसको क्लियर किया, CLS किया, क्लियर कमांड। देन आई राइट द नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब मैं इधर भी, इधर देखोगे तो यूज कॉलेज, कॉलेज के अंदर हूँ, उसके अंदर एक यूजर्स नाम की कलेक्शन है, कनेक्टेड हो गया। कनेक्ट तो हो गया, क्या मेरा यह डेटा इसके अंदर आया है, यहां से तो दिख नहीं रहा। मैं इधर जाके देखता हूँ डेटाबेस, फिर मैं लिखूंगा मेरी कलेक्शन का नाम, तो यूजर्स डॉट फाइंड। फाइंड से क्या मेरे पास जो जो डेटा है वो आ गया, देखते आता है क्या। ओ मेरे पास डेटा नहीं आया, जबकि मैंने यहाँ से डेटा तो सेंड किया है, तब भी डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया। मुझे आई नीड टू सेव इट, यूजर वन, सॉरी यूजर वन था वो, यूजर वन डॉट सेव। ये जो सेव है ना, यह भी मुझे कुछ प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब मैं यही की चीज, यदि रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट को प्रिंट कर दूं, ये देन केस कॉपी कर रहा हूँ बस, कंट्रोल भी। रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग की जगह मुझे यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे कर देता हूँ इसको ऐसा, और यहाँ पे मेरा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या है, बाकी उधर एरर आया तो एरर, कंट्रोल C, क्लियर। अब मैं नॉट इंडेक्स डॉट जेएस देखते कुछ आता है क्या, कुछ तो आया। ये तो मैंने ये लिखा था रिजल्ट आया। अब सेव हो गया, नेम है कुणाल सिंह, एज है, उसकी आईडी, और ये वी कर क्या है, वी मतलब वर्जन, वर्जन अभी बाय डिफॉल्ट 0 है। नो नीड टू फोकस टू, नाउ नो नीड टू फोकस, यस, इसको समझ सकते हैं वर्जन क्या है। अब मैं इस कमांड को वापस रन करता हूँ, सॉरी, ये वाली कमांड। इधर भी मेरे पास आ रहा है कुणाल सिंह, इसकी आईडी आ रही है, इधर वर्जन आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है, मतलब मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है और वो सेव से दिख रहा है। हमने एक डेटा इंसर्ट कर लिया, समझे। हाउ टू बी इंसर्ट वन डेटा। अब आई वांट टू इंसर्ट मल्टीपल डेटा, अब वो मैं कैसे करूँगा, तो क्या
मैं ऐसे इसको कमेंट करके एक डेटा इंसर्ट कर दिया और इसको वापस मल्टीपल डेटा में यदि नीचे वाले को मतलब जो डेटा में जो कोड लिखने वाला हूँ ये वापस लिखूंगा तो ये वापस रन हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा कनेक्शन बना लूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल से कॉपी, वही का वही कोड उधर लिखूंगा। और फिर एक इंडेक्स वन बना देता हूँ, इंडेक्स वन डॉट जेस। ओके, कंट्रोल कॉपी। अब पहले तो मेरे को कुछ नहीं, इसको हटा देता हूँ क्योंकि बार बार कमेंट मैंने आपको एक बार समझा दिया। ये सिंक फंक्शन है, मतलब यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है, स्कीमा बना हुआ है। आ, यहाँ पे कलेक्शन बन गया, इसको भी मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले आपको समझा दिया ना। मैं बार बार ये नहीं लिखना चाहता। अब मुझे मल्टीपल डेटा करना है, ये डेटा मैं पहले पुट कर सकता हूँ मल्टीपल डेटा। तो मल्टीपल डेटा में कैसे करूँ, तो मैं मदद लूंगा हमारे मॉडल की। मॉडल इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट तो उसने बनवा दिया, किधर बनाया, इधर एक डॉक्यूमेंट बनवा दिया यूजर वन नाम का। कहाँ गया यूजर वन, बना लिया किसकी मदद से, यूजर नाम के मॉडल से। अब मुझे एक और डॉक्यूमेंट बनाना है, इंडेक्स वन पे आ गया ना, इंडेक्स वन, इंडेक्स जो नीचे स्पेलिंग था। अब मुझे बहुत सारा डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं मेरे मॉडल की मदद लूंगा, यूजर वन डॉट इंसर्ट मैनी। अब मैंने ये क्या लिखा है, यूजर डॉट इंसर्ट मैनी, यूजर मॉडल है उसमें इंसर्ट करना है मैनी, ठीक है। अब एरे के फॉर्म में होगा, यहाँ पे मैं यूजर डॉट सेव लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एरे के फॉर्म में डेटा पास होगा, तो पहला ये डेटा हो जाएगा, फिर कॉमा लगा के दूसरा है डेटा हो जाएगा, फिर कॉमा लगा के तीसरा, जितना डेटा मुझे पुट करना है। तो मैं डेटा पुट कर देता हूँ भाई, नेम एज, मैं नेम लिख देता हूँ इधर मृदुल, मृदुल, मृदुल सिंह, मृदुल, मृदुल, मृदुल रहने देते हैं और इसकी एज कर देते हैं, एज ऑफ मृदुल इज अराउंड 25। देन वी हैव नेक्स्ट फील्ड और फील्ड नेम, उसमें हमारा नाम दे दिया हरी, हरी, हैरी, 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 हरी। एंड देन एज वी हैव, हिज एज इज अराउंड 19, मीन्स कम कम एज दे रहा हूँ ना, उधर 18 दिए थे बच्चे थे, अब मैं इसको एज दे देता हूँ 50, हरी की एज है 50। नेम दे देता हूँ इधर, आ दूँ नेम, मुझे नाम नहीं आ रहा, मीन्स अक्का दे देता हूँ, अक्का, अक्का। और इसकी एज होगी, एज इज अराउंड 39, 35, 35 साउंड्स गुड। ओके, अब हम इसको, हमने कुछ नहीं, कुछ एरर नहीं किया है। मृदु, हाँ ठीक है। मैं 2 सेकेंड ना, वेट फॉर अ मिनट, हाँ वेट फॉर अ मिनट। 53 हो रहा है, ठीक है। सॉरी, आई गॉट सम मैसेज दैट शोस दिस। ओ, ये कुणाल सिंह की क्यों हो रहा है, क्या मेरे पास वो, उसने मेरा इंडेक्स डॉट जेएस को प्रिंट कर दिया मैंने इसलिए। कुणाल सिंह 2 बार हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने इसको 2 बार चला दिया ना। कुणाल सिंह को 2 बार चला दिया गया है, कंट्रोल सी इसको ये मैं करना था, नोट इंडेक्स वन डॉट जेएस। अब देखते, अब पहले कनेक्शन होना चाहिए क्या, इंसर्ट, इंसर्ट कुछ नहीं होता, हाँ इंसर्ट होगा ना। अच्छा, इसने ये एरर मारा हमको, एरर फैक्ट की मारता है। अभी भी कुछ दिया, यूजर डॉट सेव, यूजर में यू कैपिटल, दैट्स वाज द प्रॉब्लम विथ मी ड्यूरिंग द कोड, आई फॉरगॉट नेम एंड आई विश यू नॉट डू सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स, ओ नो। अब क्या है, save is not a function, हम बहुत सारा इंसर्ट कर रहे हैं, then we do not need to mention this, okay। अब हमें ये सेव तो करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे cls compose node index वन डॉट जेस। अब क्या होगा, अब कनेक्टेड हो गया। अब हमारा डेटा हमें देखना है कि हमारा डेटा हुआ कि नहीं। अब हमारे पास देखो, कुणाल 2 बार आया, एक मृदुल आया, एक हैरी आया जिसकी एज हमने 50 रखी थी, और अक्का आया जिसकी एज 35, ठीक है।
हमें देखना था कि हमारा डेटा जो हमने पुट किया है, ये हमें उससे देखना था, तो हम यहाँ पे देन और कैच ब्लॉक लिख सकते थे। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। सॉरी यार, आई फॉरगॉट टू। ये जो सेव है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है देन कैच, ठीक है। सर इंसर्ट मेनी, जो ये इंसर्ट मेनी है ना, यह भी हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जिसे हम देन और कैच में रिजॉल्व कर रहे हैं, देन और कैच की मदद से। अब जैसे मैं वापस रन करूंगा तो डेटा डुप्लीकेट डेटा हो जाएगा, तो फिर मेरे को इसकी एक तो पहले कम कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत सारा डेटा हो रहा है, मुझे इतना डेटा भी नहीं चाहिए। हरी हरी से इसको हरी ओम कर दूंगा, हरी ओम। एज को कम करके 30 कर दूंगा। मृदुल को करके मृदुलम, या मृदु को करके मधु, ओके मधु सुदन, मधु सुदन, मधुसूदन कर देता हूँ। सुदन की स्पेलिंग फिर गलत कर दी हमने। हाँ, मधुसूदन, मधुसूदन की एज हम कर देता हूँ 28, 27, दैट्स गुड। कंट्रोल सी, CL इंडेक्स 1। अब देखते हैं, कनेक्टेड, दो बार कनेक्टेड क्या हुआ ये। ओ भाई, सेंडिंग दो बार कनेक्टेड क्यों आ रहा है, ये तो पहली बार देखा। ओ अच्छा अच्छा, ये कनेक्टेड लिखूंगा तो कनेक्टेड नहीं होगा, तो मेरा इधर डेटा कितना बार हो गया होगा, शिट। ये मैंने कनेक्टेड लिखा, ये नहीं लिखना था मुझे। यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे कर देता, सिर्फ रिजल्ट लिखना था, रिजल्ट। अब फिर मुझे नाम चेंज करना, मधुसूदन कर देता हूँ मैं, मधु ही कर देता हूँ, मधु। एज को भी तेरे तो हरिओम शर्मा, हरिओम शर्मा कर देता हूँ। एज को 30, 10 करना तो उसको 40। अब मैं करता हूँ सीरीज, देखता हूँ क्या होता हूँ। अब तो आया मेरे पास, मधु भी आया, हरिओम शर्मा भी आया, जिसकी 40 साल। पहले एरर क्या करी हमने, पहले ये देन कैच नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, बिकॉज वी फॉरगेट। बट फिर हमने इसमें देन कैच लिखा, और हमारा ये दोनों डेटा इंसर्ट हो गया। इधर देखेंगे तो देखो हमारे पास कितना आएगा, ये डेटा आएगा, फिर ये डेटा हमारे पास रिपीट होगा, मतलब ये हमारे पास बहुत सारा डेटा आएगा। देख, मेरे को लगता है कौनसल ही भरा जाएगा मेरे को। और भी कंसोल तो भराते हुए देख, कुणाल सिंह 2 बार आया, मृदुल हरि अक्का आया, फिर मैंने मधुसूदन हरिओम 2 बार, फिर मधुसूदन हरिओम हुआ, फिर मधु हुआ, फिर हरिओम शर्मा। इतना सारा हमारे पास डेटा हो चुका है, ठीक है। हमने क्या करना सीख लिया, मल्टीपल डेटा भी इंसर्ट करना सीख लिया। अब हमें इफ यू वांट टू फाइंड द डेटा, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस, ओके। हमें अब डेटा फाइंड करना है, तो हम उसकी क्वेरी लिख के देख लेते हैं। CRUD ऑपरेशन में क्रिएट करना सीख लिया, अब हम रीड कर रहे हैं। अब हम जल्दी से कंप्लीट कर देना, हमने index2.js लिखा, इसको इधर कंट्रोल भी कर दिया। मैं भूलू ना इसलिए CLC पहले ही इधर कंट्रोल C क्लियर कर दिया टर्मिनल को, ठीक है। मैंने लिख दिया नोट index2.js, अब एंटर नहीं करूंगा। इंडेक्स किस पे नहीं थी, इंडेक्स 2। वापस हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरी फाइल यूज कर रहे हैं, हम ये उसमें कर सकते हैं, पर मैं आपको बताने के लिए हर बार नई फाइल बना रहा हूँ। स्कीमा बनाने की जरूरत इस बार तो नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं इस बार स्कीमा की। नहीं, फिर भी स्कीमा बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा पता है। हाँ, बनाने की जरूरत है यार। कमेंट आउट करते हैं इसको भी, क्योंकि हमें यूजर नाम का मॉडल तो बनाना पड़ेगा। और यूजर का मॉडल कब बनेगा, जब हमारे पास कलेक्शन होगा। ओ, आई हैव सम, ओ वेट फॉर अ मिनट, आई हैव व्हाट दिस कीड़ा, 2 मिनट, हाँ, आई नीड टू पुश इट, वेट फॉर अ मिनट, बिकॉज आई हैव सम, sorry but I have some कीड़ा insect towards man, I need to throw it। सो हम कहाँ पहुंचे, हम्म
यूजर मोमोज मॉडल इंसर्ट मेनी, हाँ हम क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे। हाँ हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे इंसर्ट मैंने लिखा, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर। यूजर क्या है, मॉडल डॉट यूजर डॉट फाइंड वन। फाइंड वन ये लिखेंगे हम। और ये also find one does not return a promise, it returns a query string but we can handle through then and catch। ठीक है, ये हमें वह रिटर्न नहीं करेगा, क्या प्रॉमिस रिटर्न नहीं करेगा, प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता, क्वेरी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और उसको भी हम देन और केस से वो कर सकते हैं, हैंडल। ठीक है, मेरे को इसको वो करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें स्कीमा देना ही पड़ेगा। ठीक है, स्कीमा देना पड़ेगा फाइंड करते टाइम। हम यदि उसी फाइल में लिखते तो वी डू नॉट फेस सच अ प्रॉब्लम, बट नाउ वी आर डूइंग इन डिफरेंट। माय नेट प्रोटेक्टर कोड्स, सो आई कैन, क्या हुआ कुछ, उसने सिर्फ कुणाल सिंह को ही क्यों दिया, रिजल्ट में तो हमें बहुत सारा रिजल्ट आना चाहिए था। फाइंड वन लिखा है ना हमने, फाइंड वन क्यों, सबको फाइंड, इसने फाइंड वन मतलब पहले वाले को ही दे दिया, 18 नंबर कुणाल सिंह इसको ही दे दिया, जो सारा डेटा चाहिए। कंट्रोल सी करो, सी एल एस करो, बार बार टर्मिनल भूल जाते हैं। हमारा डेटा, बहुत सारा डेटा आया, अब क्या हमारा डेटा मैच कर रहा है, या कुणाल सिंह 2 बार आएगा, इधर मृदुल आ रहा है, इधर भी मृदुल है हमारा, फिर हरि और अक्का है, इधर भी हरि और अक्का है, अक्का की एज 35 है, फिर मधुसूदन है, हरिओम है, मधुसूदन 2 बार, हरिओम भी 2 बार, फिर मधु और ओम शर्मा। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड कर लिया, फाइंड फाइंड वन भी कर लिया है ना, फाइंड वन। अब हम कर रहे हैं फाइंड वन। यहाँ पे कुछ हम क्वेरी भी लगा सकते हैं कि जिसके एज एज, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन, मैं बताता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, 20। ठीक है, जिसकी एज, यहाँ पे एज हमने एक फील्ड पास करी ग्रेटर देन और 25 के, तो ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन 25। और ऐसा सारे चीज, जैसे सारे जितने भी ऐसे जिनकी एज ग्रेटर देन 5 हो, वह मुझे चाहिए। जिनकी भी एज ग्रेटर देन 25 है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे जन हैं। हरि है, का है, मधुसूदन है, हरिओम है, मधुसूदन है, हरिओम है, मधु है, हरिओम शर्मा है, इतने सारे। अब मुझे तो सिर्फ एक चाहिए, इतना सारा डेटा नहीं चाहिए, क्या करूँ मैं इतने सारे डेटा को, मैंने फाइंड वन लिख दिया, फिर सी एल एस लिख दिया। एक यार, हरी ही क्यों आया, बाकी क्यों नहीं, क्योंकि उससे हरी सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, हरी सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है, हमने फाइंड भी करना सीख लिया, फाइंड वन भी करना, अब फाइंड बाय आईडी भी होता है एक चीज, तो उनसे कॉपी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। फाइंड वन कर लिया हमने, फाइंड ऑल कर लिया। हम अब फाइंड बाय आईडी करते हैं, कंट्रोल से कॉपी, फाइंड बाय आईडी, फाइंड, यहाँ पे लिखेगा बी कैपिटल आई कैपिटल, ये फाइंड बाय आईडी। और यहाँ पे सिर्फ हम आईडी लिखेंगे, फाइंड बाय आईडी, आईडी की जैसे हम हिस्ट्री लिख देते हैं। ओ नो यार, वेट फॉर इट, कंट्रोल से कॉपी, और हमारा यहाँ पे आईडी लिखेंगे सिर्फ। अब हम इसको कनेक्ट करने की कंट्रोल से,
हरिओम, ये आईडी थी क्या? 6 A64 कौन सी है? A64 एक को भी हम बाय आईडी भी कर रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपडेट। ओके। अब अ, अब आपके इसमें क्वेश्चन एक दिमाग में आ रहा होगा कि ये असिंक्रोनस फंक्शन है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा देन में तभी कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद भी आपको ये सब चीजें लिखनी चाहिए, तो पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मान लो ये पेंडिंग हो गया, मतलब बहुत टाइम ले रहा है। जैसे हम एपीआई को फेच करते तो पेंडिंग रिक्वेस्ट भी हमारे पास एक स्टेट होती है ना, अगर टाइम ले रहा है या फिर एरर आ गया या फिर कनेक्ट कुछ कुछ भी, मतलब फिर भी हम आगे का कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे दिमाग में, और आना भी चाहिए क्या, कि जब ये हमारी ये जो रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, जब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, हमारा बैकएंड मोंगोडीबी से कनेक्ट हो जाएगा, है ना, जब ये कनेक्ट हो गए तभी हमारा आगे रिटर्न होगा, तभी हम इंसर्ट कर सकते हैं अपडेट पे, जो भी हम कर रहे हैं वो करना पड़ता है। पहले पहले कैसे कर पा रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ ऑपरेशन बफरिंग। यहाँ पे लिखता हूँ, आई एम यूजिंग दिस पेन फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ ऑपरेशन बफरिंग। ठीक है, ऑपरेशन बफरिंग के कारण ये हो रहा है। और ऑपरेशन बफरिंग होता क्या है? व्हाट इज ऑपरेशन बफरिंग? सो ऑपरेशन बफरिंग मीन्स इट गिव्स, वो कहाँ गया, ओ भाई साहब, वेयर यू केम फ्रॉम, जाओ आप वहीं से। हाथ ये सो उठाऊंगा ना, ये माउस है मेरा। वो कहाँ जा रहा हो पहलवान? ओ पहलवान, किधर किधर, तुम किधर से आए हो? ओ ये दिल दिल नहीं, हाँ इससे उठेगा तू इधर। ऑपरेशन बफरिंग, या गुड, इसके नाम कॉन्टेक्स्ट। सो ऑपरेशन बफरिंग मतलब क्या हो रहा है कि जब ये देन हो जाएगा उसके बाद रिजॉल्व होना चाहिए, तो पर ऑपरेशन बफरिंग हमको मोंगो सपोर्ट करता है ऑपरेशन बफरिंग, जिसके कारण हम डोंट वेट, वेट की स्पेलिंग क्या है? डोंट, डोंट कैसे लिखते हैं, डोंट वेट फॉर गेटिंग कनेक्शन स्टेबलिश, एस्टैब्लिश, नॉट वेट फॉर गेटिंग कनेक्शन स्टेबल, और उसके बाद में वो उसका कार्यक्रम चालू कर देता है। ये जो भी उसका काम है वो करना चालू कर देता है। ठीक है, ये चीज होती है हमारी। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ ऐसे। क्लियर ऑल ड्राइंग्स में, क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, आई नीड टू यूज इट। ठीक है, हमने ये कर लिया। क्या क्या कर लिया आपने? तो अब हम अपडेट करने वाले हैं ना, नहीं फाइंड हो, क्या आप अपडेट करेंगे। इंडेक्स वन में हमने अब तो एक डेटा पुट किया था, फिर दो डेट मल्टीपल डेटा पुट किए, फिर फाइंड करा, अब हम अपडेट करेंगे। ऑपरेशन बफरिंग भी बढ़ा दिया मैंने। अब मैं बढ़ूंगा इंडेक्स 3 डॉट, फिर से मुझे कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा, फिर से कॉपी करूंगा और ये सब हटा दूंगा, क्योंकि मुझे ये होश पोश हो रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं चाहिए। डोंट वांट दिस होश पोश, दैट्स व्हाट्स द रीजन। ये सब की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे इसको भी अच्छे से स्पेसिंग के देख देना चाहिए। सही है, कुछ नहीं किया है। हमारे मोंगोज को लिया, उससे कनेक्शन स्टेब्लिश किया, प्रॉमिस रिटर्न हुआ, एनकेज में किया, फिर स्कीमा बनाया, फिर हमने कलेक्शन बनाया, एक मॉडल बनाया, मॉडल की मदद से अब हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है यूजर। मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, यदि मैं कुछ गलत डेटा भेजता, गलत डेटा मतलब एरर भी तो दिखाऊं मैं आपको। इंसर्ट कर रहे थे ना, इंसर्ट मैंने नहीं करूंगा इस बार, मैं इंसर्ट वन ही करूंगा। और इधर यूजर वन है, ठीक है, मैं सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं। कुणाल को मैं कर देता हूँ कार्तिक, 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 या इसकी एज है ना, मैंने बोला था कि 13 से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 13 होनी चाहिए, मैंने इसकी एज कर दी 10।
अब तू क्या करेगा, मैं 10 नाम के 10 एज वाला डेटा इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ, बस कुछ एरर देख के मारे, सी व्हाट एरर इट वाज थ्रोइंग टुवर्ड्स मी। ओके, क्या था, मेरे को लिखना पड़ेगा नोड इंडेक्स 1 इंडेक्स कनेक्शन होगा। ओ कुछ तो एरर दिया, मैं इसको बड़ा कर दूं। ठीक है, इसने मेरे को कनेक्टेड टू हुआ, रिकनेक्टेड हुआ, फिर एरर दिया, यूजर वैलिडेशन फेल, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल एज, नॉट एलिजिबल एज तो मेरी फील्ड है, नॉट एलिजिबल मैंने जो मैसेज मैंने दिया था नॉट एलिजिबल वो है, ये मेरा कस्टम मैसेज है यहाँ पे, वरना ये कुछ भी मैसेज देता, मेरे कस्टम मैसेज है कि नॉट एलिजिबल, है ना। अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए कि सिर्फ हमारे पास मैसेज आए, ये सब भी ना है, क्योंकि हम ऐसे थोड़ी ना कि कोई इंस्टाग्राम पे यूजर एज डाल देता 0 -1999, जैसे कुछ कुछ बेफालतू डाल देता, कभी होता हो, ऐसे तो नहीं होता है, ताकि हाँ मे बी, तो ऐसे थोड़ी ना इतना सारा कोड या फिर हमको एरर ऐसी थोड़ी ना पसंद है, हमें तो एकदम फ्रेश एरर पसंद है, जो हमको समझ में आ जाए पढ़ते से, यूजर डिफाइंड। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारे पास एरर आई, एरर में हमारे पास एक एरर है, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, फिर हम वैलिडेशन एरर में जाएंगे, फिर हम एज में जाएंगे, तो जाते हैं, कहाँ का जाना है, यहाँ पे मुझे ये एरर हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा नहीं, मैं हटा रहा हूँ, हटाना तो कुछ नहीं पड़ेगा, डॉट एरर, एरर में जाओ, और हाँ, इतना तो जाओ फिर, एरर है अनडिफाइंड एरर, नाम कुछ अनडिफाइंड एरर्स होता हो, ए कंट्रोल सी कनेक्टेड टू, अरे हाँ, इसको एरर्स करूँ क्या, या इसको हटा ही दूँ, जो पढ़ना था पहले यार, शिट, पढ़ा ही नहीं मैंने उसको कि कैसे करेंगे, और डायरेक्ट कॉपी पे चेप रहा हूँ बस, चेप ही तो रहा हूँ यार, उधर से एरर लेके आया, इधर से प्रॉपर्टीज के अंदर जाना पड़ेगा, कहाँ पे एरर दे रहा है, एरर, तो कर लूँ मैं पहले यहाँ, एरर, यूजर वैलिडेशन फील्ड नॉट एलिजिबल, यूजर वैलिडेशन फील्ड, एरर के अंदर हमारा यूजर वैलिडेशन फील्ड, ये तो नहीं हो, नॉट एलिजिबल, ये एरर से फिर, ये तो एरर है, फिर यहाँ से इसके अंदर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है, एरर्स नाम की की है हमारे पास, ठीक है, उस की के अंदर भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो की होगी, की भी की है, एरर्स में हमारे पास एज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज, फिर एज इतना करके देखूंगा, मैं मैं कोई एरर फेंक के मारा तो फिर, चलो जल्दी करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज यू आर रीडिंग विथ मी, वैलिडेशन एरर, फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज आएगी, प्रॉपर्टीज कंट्रोल सी कॉपी, प्रॉपर्टीज में मुझे चाहिए मैसेज, चाहिए मैसेज आ गया हमारे पास, मैसेज आने के बाद जो हम करेंगे, नॉट एलिजिबल, आपके 13 है और यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, नाउ व्हाट वेयर वी आर एट इंडेक्स 3, एंड क्या हम कर रहे थे, हमने इसमें से कुछ नहीं किया था, कनेक्शन बनाया था, इंडेक्स 3 हमारा, कंट्रोल सी CLS, हम यहाँ पे अपडेट करना सीख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बी फोकस्ड ईयर, अभी तक जो पढ़ा कुछ भी नहीं, अब जो पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज तो कुछ नहीं है, यहाँ से हमें अपडेट करना है, तो यूजर अपडेट
अपडेट वन और में अपडेट वन क्या अपडेट करना है, तो हमने लिख दिया इसका नेम हरी हो, जिसका नेम हरी हो, उसकी एज कर दो 100। अब देखो 100 तो कर रहा है, ठीक है। और देन ये भी हमें क्या, ये भी एक क्वेरी स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग रिटर्न करेगी तो हमें इसको भी देन केस में लिख सकते हैं, मेरे को बार बार देन केस नहीं लिखना, इसलिए मैं इसे ले आता हूँ इसको। ठीक है, अभी तो हो जाएगा रन। थ्रो एरर व्हाट वाई अपडेट वन जिसका नेम हरी हो, क्या है? कनेक्शन ही नहीं बना क्या? फोर की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड पे हूँ, फोर तो है ही नहीं मेरे पास। लोड, फोर तो नहीं है यार मेरे पास, फोर बना रहा था। उसके ऊपर ही कुछ हैरी, क्या है हैरी? अरे हैरी को तुम स्ट्रिंग बनाओ ना यार बाबा। हैरी इज a string and you are putting it like a value. Oh, no, no, it was not going to work here. Put it into a string. कंट्रोल सी, सी एल एस, मुझे बार बार ना लिखना पड़े, अब ना लिखूंगा, आपको दिखना चाहिए। ओह सॉरी, ये क्या फेंक के मारा तुमने? क्या लिखा है? एक्नॉलेजमेंट ट्रू, मतलब आपने जो कमांड रन की थी वो रन हुई है, एक्नॉलेज कर ली। मॉडिफाइड काउंट, एक मॉडिफाइड हुआ है। अब अब अपसर्टेड आईडी नल, अपसर्टेड काउंट 0, मैच्ड काउंट एक मैच हुआ था हरी नाम से, उसमें हमने एक्नॉलेजमेंट मिल गया, हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर लिया। और मेरे दिमाग में खेला आ रहा है कि भाई मैंने ये सब किया, मैंने देन कैच भी लिखा, मेरे पास रिजल्ट आया, उसको तुमने इस फॉर्म में क्यों दिया, एक मेटा डेटा के फॉर्म में? मेटा डेटा ना, मुझे मेटा डेटा नहीं चाहिए, मुझे तो एक्चुअल डेटा चाहिए। तो मैंने बोला फाइंड एंड अपडेट। अभी लो, पहले तो मैं इसको, हम दूसरे को अपडेट कर लेंगे, पहले इधर देख लेते हैं अपडेट हुआ है क्या, इधर देख लेते हैं। हम तो उधर भी देख सकते हैं, पर बार बार क्यों ही हम, क्यों क्या कर रहा हूँ। ये देखो, मैंने किसका, हरी का, और हरी भी वन, एक एक को अपडेट करना है। हरी तो मेरे पास बहुत सारे होंगे, तो मुझे नहीं पता हरी बहुत सारे की। हरी, इसकी एज, ओ ये एज क्यों नहीं हुई चेंज? नेम हेरी अपडेट वन, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ये हेरी, हेरी हेरी की एज कर, ये शो कर दी इसने, इस वाले हेरी की करी। ऐसा भी कुछ होता है क्या, कहीं से भी हेरी की कर देता है? नहीं नहीं नहीं, वो मैं ऊपर वाला दिख रहा था, उनको देखना था। मैं लिखता हूँ क्लियर सेल्स, यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब देखना, ठीक है, यहाँ से कुणाल, कुणाल मृदुल, हरी, हरी ये चीतियों की सुख शांति, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल सी, आप चाहते हैं कि आपने अपडेट किया, पर मुझे फाइंड भी तो, मतलब मुझे दिखना भी तो चाहिए इधर कंसोल पे, तो आप लिखेंगे फाइंड वन एंड अपडेट। यह कमांड रन करते से ही भरी की एज में कर दूंगा 101 से 90, 89 कर सकते, लाइक 89। नो, ओ एरर फेंक के मारा। फाइंड वन एंड अपडेट इज नॉट अ फंक्शन, why it was not a function? Find one and update is not a function. Let me check it. So we go to the mongoose and here schema, next query, query, query में कुछ आएगा, query में कुछ आएगा, here query, query में कुछ आएगा, find one and update।
फाइंड व्हेन एन अपडेट इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अच्छा, अपडेट का यू तो कैपिटल लिखो यार, तुम भी ना पहलवान। अपडेट। अब हमारा कंसोल, तू भी इधर आ जा, प्रकट हो जा। उसको क्लियर कर देते हैं, बहुत होश पोश हो रहा है। तू भी क्लियर हो जा, तू भी बहुत गंदा दिख रहा है अभी। सब गंदे हो रखे हो। नोड इंडेक्स 3943। हरी की एज सोई हुई, और हरी तेरी सोई क्यों, मैंने तो 89 करी। पर मैं जब देखूंगा तो इधर तो 89 हो गई होगी हरी की एज। हरी की एज 89, इधर सो क्यों, क्योंकि इधर पहले फाइंड किया। फाइंड करके इसने इधर दे दिया, फिर अपडेट किया। इसलिए अब मुझे तो साथ ही साथ चाहिए, तो मैं इधर लिख दूंगा न्यू कमांड को ट्रू कर दूंगा। न्यू मतलब कि जो अपडेटेड डेटा वही मुझे बताओ, ठीक है। अब मैंने इसकी एज को 89 से कर दिया 100। 100 तो अभी पुट किया, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो 7 क्या रखो, 95। साउंड्स गुड। मुझे कुछ आएगा। हरी की एज 95 अब अपडेटेड के साथ आई है ना, तीन चार चीज हमने सीखी ना। मैं इसको कंट्रोल से कॉपी कर लेता हूँ। अब बताता हूँ क्या क्या सीखा हमने। कंट्रोल भी, पहले हमने सिर्फ फाइंड अपडेट बोला, अपडेट करो वो भी वन। यूज स्मॉल is JavaScript which follows camel case update one। नेम हैरी, यहाँ पे न्यूट्रो लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज हमने ये पढ़ी। फिर एक चीज ये पढ़ी कि हमने सिर्फ न्यूट्रो नहीं लिखा तो हमको नहीं देता। ये भी लिख पढ़ लिया हमने। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको। ये सब पढ़ लिया हमने, अब मैं इसको सिर्फ, अरे ओ के लिए चंबल के डाकू। व्हाट्स द टाइम नाउ? It was in my system 10:22 p.m. and in the starting I say hello, good morning to you. Why? Because I am too much get confused, because I want to teach you now, and I got confused. So मैंने starting करी good morning everyone, but the time is p.m. What can, और ये क्या चीज आ रही है, कोई क्या इससे क्या होता है? आ रहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। नोटिफिकेशन, ओह माय गॉड। आई गॉट इट। मैं क्या बता रहा था, फाइंड बंद कर दिया हमने, फाइंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी। हाँ। हाँ, मैं अपडेट कर रहा हूँ। पर मैंने एक चीज देखी, एक और बार अपडेट करता हूँ, पर अब अपडेट करूंगा मैं आईडी से, सीखो। फाइंड वन में फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। फाइंड बाय आईडी, आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अब आईडी में लिखता हूँ मेरी आईडी जो भी, मेरे को आईडी किसकी लूँ? आ, मैं लेता हूँ ये दो दो मधुसूदन और है ना। हाँ, तो इसमें से एक मधुसूदन अपडेट कर देता हूँ। दो हमें मधुसूदन थे, मेरे को एक मधुसूदन को कर देना जो 27 है, दोनों की 27 है। मेरे को इस मधुसूदन का नाम करके नाम भी चेंज कर दूंगा, और एज भी थोड़ा सी कॉपी। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो हमने इसको आईडी लिख दी। फाइंड बाय आईडी, एज हो जाएगी इसकी 95। नहीं, अब मैं ना एक चीज बताना चाह रहा हूँ। मैंने इसकी एज को लिख दिया 15। अब देखो, व्हाट डू थिंक देयर आई गॉट एन एरर और नॉट? क्योंकि मैंने स्कीमा में तो बताया है कि एज 13 होनी चाहिए, और मैं एज 15 लिख रहा हूँ, 15 को कम कर रहा हूँ। एज को कर दिया मैंने 10 साल। मैंने स्कीमा बोला मिनिमम 13 साल का होना चाहिए बच्चा। तो इधर मैं बाट पुट कर रहा हूँ 10 साल। क्या लगता है वो एरर आएगा या ना होगा, एरर इंसर्ट हो जाएगा? यदि एरर आएगा तो क्या एरर आएगा, क्यों आएगा? ऊपर यदि इंसर्ट हो जाएगा तो क्यों इंसर्ट हो गया? हो गया। 10 साल का बच्चा अब इंसर्ट हो गया, जबकि मैंने मिनिमम एज 13 दे के रखी थी। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग अपडेट
ड्यूरिंग अपडेट दिस और स्कीमा वैलिडेशन, इनको स्कीमा वैलिडेशन बोलते हैं, don't work. Schema validation doesn't work at the time of updation. If we want to do this, we need to write another key function, run validator. Run validators या validator, validator होता है, validators होता है, validators होता है। देखते हैं वैलिडेटर है वैलिडेटर। अब मैं एज इसकी तो 10 कर दी मैंने, अब दूसरा लिखा था। ओके, यूएसए तो देखते हैं ना हम, हुई कि नहीं। किसकी थी? मधुसूदन की एज 10 साल हुई कि नहीं? मधुसूदन की एज 10 साल, मधुसूदन 10 एज, और मधुसूदन 10 साल वाला का मधुसूदन आएगा। दो मधुसूदन थे, हमने वाली आईडी लिखी थी। अब इस वाले मधुसूदन की हम एज कर देते हैं 10 साल। अब एरर मारेगा क्योंकि मैंने तो लिख दिया ना ये, क्या लिखा? रन वैलिडेटर्स। यदि ये वैलिडेटर्स होगा, वैलिडेटर मुझे कंफर्म नहीं है, अब मुझे एरर भी पढ़ना पड़ेगा। अभी तो एरर आएगा, इसने कर दिया 10 साल। रन वैलिडेटर्स वो आएगा फॉल्स आएगा, वैलिडेटर इसमें इसकी भी एज को 10 साल कर दिया रही, इस वाले दूसरे की एज के द्वारा इसको फॉल्स नहीं आता, ट्रू आता। रन वैलिडेटर ट्रू आता है, वो चलता है, ट्रू ही आता है, पर वैलिडेटर होता है वो। रन वैलिडेटर, वैलिडेटर सही है। अब मैं इसकी एज को करना चाह रहा हूँ अब 9 साल। अब एरर आएगा, मुझे एरर सही वो फिर एज को तूने कर दिया। क्या घपला हो रहा है? रन वैलिडेटर रिटर्न ट्रू फॉल्स था क्या? क्या मैं चेक कर लूं? कैन यू गिव मी 2 seconds टू चेक इट? रन वैलिडेटर्स, वैलिडेटर्स कहाँ आएंगे? वैलिडेशंस में जाएंगे, और रन वैलिडेटर करके कुछ है क्या? रन वैलिडेटर सिंक ग्लोबल वाइड वैलिडेटर डेट ऑन डेट। ये रन वैलिडेटर्स, ये तो आना चाहिए, ये तो लिखा था हमने। बबल तेरा आसमान, बबल तेरा आसमान। ओ वैलिडेटर्स, अरे पर फिर भी यार स्पेलिंग करना तो अब एज 8 कर रहा हूँ ना दूसरी। एज को 5 साल कर रहा हूँ, 5 साल का बच्चा, और मैं इसको कंसोल को ओपन करना चाहता हूँ। अभी भी डाला जाएगा तो क्यों एरर आ रहा है? अब हम नहीं चाहते हैं दूसरे दिन की एज कम हो। Then also we are able to make the changes what such thing was happening with us. CLS clear, then not index or three. Bubble तेरा why bubble तेरा star oh है reason 5 new case और दिक्कत थी। You got to know that it doesn't work। मुझे भी आज पता चला कि दोनों साथ में काम नहीं करते, मुझे लगा करते होंगे, मैंने तो कभी यूज ना किया, भूल गया, करना चाहिए था मुझे भी। इसको न्यू न्यू करते ना, हाँ, न्यू टूल था, न्यू टूल के साथ था। और एज को जब हम करना चाह रहे थे 10 तो कर पाए, पर जब हम इसकी एज को कम कर दे, अभी तो 5 इसको एज, हाँ 5 तो पहले से थी, इसके एज को 4 करने। अब रन कर लेगा, अभी भी एरर आएगा से तो, 5 वाला तो हो चुका था, वापिस कर। देखो 4 एज, अब एरर क्या है? आई वॉन्ट टू शो यू द एरर। पहले नॉट एलिजिबल, ये हमने कस्टम एरर डाला हुआ है। काइंड, काइंड मतलब जो हमने कॉन्स्ट्रेंट डाला है वो मिनिमम, और पाथ, पाथ या फील्ड, फील्ड पाथ एज, एज की वैल्यू हमने क्या डाली? 4। ठीक है, हमने डाली 4,
यहाँ पे एरर है। और एक काइंड मिनिमम सेट करके रखा था ऑन द फील्ड एज। ठीक है, कॉन्स्टेंट इज सेट ऑन द फील्ड और अ पाथ एज, द वैल्यू इज 4 गिवन बाय अस। यहाँ पे error। तुमने अपडेट करना भी सीख लिया। बबली तेरा मोबाइल कुछ ऐसे ही सुन। I'm not a good singer, I'm not a, but I good listener. Now, what we do, we create, read, update, create, read, update, and what's the thing is even in delete? डिलीट भी कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारा डेटा हो गया, हम डिलीट भी कर देंगे। इंडेक्स 5 परचेज हो रही है ना। हाँ, आप इस उधर से लाना पड़ेगा, इधर से नहीं, इधर से है। बाबली तेरा होगा। अरे ये गाना क्यों आ रहा है? मुझे सिर्फ इतना सा ही कोड चाहिए, इसका इतना। पर कुछ तो भी मैंने हमेशा आपको बता दिया ना, अपडेट वन ये भी रिटर्न क्या करेगा, क्वेरी स्ट्रिंग, फाइंड क्वेरी स्ट्रिंग, फाइंड क्वेरी स्ट्रिंग, अपडेट क्वेरी स्ट्रिंग, है ना। इंसर्ट में तो क्वेरी स्ट्रिंग नहीं, वो देन प्रॉमिस से रिटर्न करता है। इंसर्ट में नहीं, हमको रिटर्न करता है प्रॉमिस। हम अपडेट करने वाले, अपडेट नहीं सॉरी डिलीट, अपडेट भी कर लिया ना हमने, अब डिलीट करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यूजर डॉट डिलीट वन। मैंने जैसे डिलीट वन, तो वन किसको ऐड करेंगे, मैं भी ये बहुत सारे नाम पे हो रहे थे। ये मधु, मधु में मधुसूदन, मधुसूदन आए तो वो मधु तीन मधुसूदन है, इस वाले मधुसूदन को डिलीट वन नहीं, डिलीट मैनी कर रहे हैं, डिलीट मैनी। अब हम मैनी लिख सकते हैं, डिलीट मैनी, जिसमें नेम मधुसूदन हो, सारे ही मधुसूदन वाले हटा दो। मधुसूदन तो भगवान जी का नाम है, कृष्णा जी का। हरिओम भी कृष्णा जी का नाम है, मैं किसको हटाऊं यार, का ये कुछ अलग नाम है। डोंट गेट ऑफेंड हुज नेम इफ समवन नेम इज सबका, किसी का नाम नहीं हटाते। मैनी मैनी मतलब सारे हट जाएंगे जिनकी भी एज, यार मैं फंस गया। एज कितनी हो, बस डिलीट मैनी जिनकी एज 10 और ये है, कर देगा इसका देन और कैच। डिलीट काउंट वन, एक डिलीट हो गया, इसकी एज 10 है, इसकी एज 10 है, एक 10 वाला तो एक ही है, ये वाला डिलीट हो चुका। फाइंड करके देखिए इसको, फाइंड, हाँ इसकी एज 10 है ना, इसको फाइंड करके देखते हैं। तो ले जाते हैं हमारी आईडी के पास, फिर उसकी कॉपी हमने क्रिएट की थी सेकंड वाले में, जब हम फाइंड कर रहे थे, फाइंड बाय आईडी, है ना। यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि है ही नहीं ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते इसलिए ना। Now we are going to work on
डिलीट वन क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट मैनी मतलब एक ही था ना, इसलिए हमने जिसकी भी एज। में हम देख सकते थे जैसे मेटा डेटा फाइंड। हम डिलीट मैनी कर पा रहे हैं, डिलीट वन भी कर पाएंगे। डिलीट मैनी भी कर पा रहे, डिलीट वन भी कर पा रहे। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट वन। इसमें तो डिलीट वन लिखने की है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। मतलब बस वो आईडी, फाइंड बाय आईडी। अब हमारे पे यहाँ पे मेटा डेटा नहीं है कि वो मतलब जो डिलीट हुआ वो आएगा। मैंने लिखा यार फाइंड बाय। इधर में करेगा डिलीट में नहीं, ये हमारा डिलीट में नहीं था, ये हो गया नोड इंडेक्स डॉट फोर डॉट सिक्स। एरर है ना कहीं पे? वेयर इज द एरर? हाँ फाइंड वेयर प्रोग्राम। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों कैसे फंक्शन होगा, डिलीट कर दी तो कर। कैमल केस व्हाई यू गॉट फॉरगेट। अब हमारे पास फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट क्या इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा बाय बाय में भी बाय। अब सही होना चाहिए यार। अब मेरे दोस्तों के सामने मेरी इमेज का सवाल है, थोड़ी बहुत तो है मेरी इमेज। ये डिलीट हो चुका है मतलब कि शो डेटाबेसेस। अरे फाइंड यार, फाइंड फाइंड हरिओम नाम का आएगा, फाइंड हो गया गैस। 30 नाम का डिलीट किया ना, फाइंड बाय आईडी डिलीट दिया ना चेक तो। अच्छा दो थे मेरे पास, एक तो डिलीट हुआ ना, दो थे हरिओम। और इसको भी दो बार रन कर दिया, इसको भी दो बार तो। हरिओम देखो अब एक और होगा ना। ये आईडी अलग है देखो, 6616 में झूठ तो नहीं ना बोल रहा हूँ, 6 ये 5 ये 6 4 दो बार हुआ था। बोलो डिलीट नहीं हुआ, हुआ मतलब वो दो बार इंसर्ट हुआ था तो इसलिए एक बार और करेंगे तो अब हो जाएगा। यहाँ पे फाइंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अब हम इसको वो करते हैं फाइंड बाय, फाइंड मेनी एंड डिलीट, मेनी एंड डिलीट। अरे फाइंड मेनी एंड डिलीट को मैं कमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि इफ मैं कहीं फंसा तो मुझे भी तो सहारा होना चाहिए। फाइंड मेनी, फाइंड मेनी एंड डिलीट किसकी, जिसकी एज, जिसका नाम है नेम हरिओम, नेम हरिओम, हरिओम। फाइंड मेनी सारे हरिओम नाम वाले थे। और नो फाइंड मेनी एंड डिलीट क्या इज नॉट अ फंक्शन। फाइंड मेनी, हाँ इसमें मेनी एक साथ डिलीट नहीं होता ये बोल। जैसे डिलीट में नहीं हो सकता, फाइंड मेनी एंड डिलीट नहीं होता इसके अंदर।
इसमें सिर्फ डिलीट में नहीं होगा, डिलीट, डिलीट मैंने बता चुका हूँ ना। ये होता है कि बता तो दिया। डिलीट में नहीं, डिलीट वन कर देंगे तो डिलीट वन। दैट वॉज ऑल अबाउट CRUD operation. We perform all the CRUD, create, read, update, and delete. Okay. We perform all CRUD operation using JavaScript. And now what we are going to do is हम एक स्कीमा वैलिडेशन चेक करते हैं कि स्कीमा वैलिडेशन क्या होता है। ऑप्शंस देख लेंगे थोड़े बहुत इसके लिए। जो स्कीमा टाइप ऑप्शंस देख लेंगे। स्कीमा टाइप ऑप्शन मतलब यही हमारी जो फील्ड होती है, और फिर स्कीमा वैलिडेशन देखेंगे। तो स्कीमा वैलिडेशन हमने चेक कर लिया कि एज किसी भी ज्यादा होती है, क्या भी टेम्पररी एरर आना। बस हम एक स्कीमा बनाएंगे और यूजर टेबल बुक। एक हम एक अलग से सब बनाते हैं इन सबको हटा के। शो कॉलेज का ना, मैं एक नया डेटाबेस बनाते हैं। बस थोड़ी सी देर की बात है, फिर आप पढ़ाई करना, और पढ़ाई करना, बहुत पढ़ाई करना है। Books.js, बस 2 सेकेंड, हाँ 2 सेकेंड में बस इसको कॉपी पेस्ट, बस आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। तो मैं खुद थक गया यार पढ़ाते पढ़ाते तो। पर हमें हार नहीं माननी, क्योंकि हमें कुछ अचीव करना है ना जिंदगी में। वी डोंट टेक ब्रेक। हमने इस बार जो बनाया उसका नाम अमेजोन दे दिया, अमेजॉन। अमेजॉन नाम की एक वेबसाइट बनाई हमने, अमेजॉन नाम की वेबसाइट। इसका यूजर स्कीमा नहीं है, उसका बुक स्कीमा है। बुक, बुक का बीच छोटा, बुक स्कीमा। बुक का नेम नहीं होता, बुक का टाइटल होता है। टाइटल, टाइटल टाइप स्ट्रिंग बुक का टाइटल रिक्वायर्ड होता है। ऑथर, बुक का ऑथर होते हैं कुछ ऑथर। तो बुक का ऑथर का टाइप तो स्ट्रिंग होगा। और इसकी जो मिनिमम लेंथ रहेगी, उसको मिनिमम लेंथ बता दें। ये सब हमारे वो है, क्या बोलते हैं मिनिमम लेंथ, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, टाइप ऑप्शन। मिनिमम लेंथ इसकी होनी चाहिए, मतलब ऑथर का नाम बहुत बड़ा वाला नहीं होना चाहिए। तो मैंने दे दी 30। 30 से ज्यादा हुआ तो फिर एरर फेंक के मारेगा, और एरर हुआ तो एरर को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। मिनिमम स्मॉल, स्मॉल ऑथर प्लीज, प्लीज को हम, ठीक प्लीज मतलब खुदाशाही। खुदाशाही मतलब होता है प्लीज। ओके, खुदाशाही मीन्स प्लीज। टाइटल ऑथर, देन वी हैव अनदर फील्ड विच इज प्राइस। बुक की प्राइस क्या होगी, तो मैंने दे दी बुक की प्राइस होगी मिनिमम, मिनिमम नहीं देता इस बार प्राइस। हाँ, 1 रुपए से सस्ती तो कोई बुक मिल ही गई, तो भी है ना फिर की मारेगी। डिस्काउंट, डिस्काउंट दे देता बाय डिफॉल्ट, डिस्काउंट बुक पे दे देंगे डिफॉल्ट। अब देखो यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे टाइप तो देना पड़ता है हमको, टाइप होती स्ट्रिंग, प्राइस तो नंबर होती है। मैं एक चीज बताऊंगा आपको प्राइस के ऊपर, यहाँ पे एक और चीज मुझको याद आई। डिस्काउंट के साथ हम दे देते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या दे दे, मैं दे देता हूँ उसका डिफॉल्ट। टाइप भी देना पड़ेगा ना, टाइप क्या देंगे, नंबर, नंबर टाइप के। यहाँ पे और कैटेगरी, बुक की कैटेगरी बोलती है, कैटेगरी, कैटेगरी। फिर आएगा कैटेगरी किस टाइप की, टाइप स्ट्रिंग।
अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इनम का। इनम से क्या होगा कि हम बहुत सारा एक टाइप का डेटा, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं हम। इनम इनमें से कुछ भी, जैसे मैंने ले ली फिक्शन मूवी, मतलब कैटेगरी ना, तो कैटेगरी मैंने ले ली मार्वल इन फिक्शन, नॉन फिक्शन, फिक्शन, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल बुक भी होती है ना, स्पिरिचुअल एंड नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन बोलते हैं हाँ। बस बहुत सारा डेटा इंसर्ट हो गया हमारा। यूजर इंसर्ट करेंगे, देन कैच हो जाएगा। मैंने मैंने करें कि सिंगल कर लेते हैं यार, मुझे सेव करना पड़ेगा उसको। तो जो मैंने इंडेक्स डॉट जेएस में लिखा हुआ है। ठीक है। मुझे बहुत जल्दी जल्दी डेटा पुट कर देता है यार, मैं भी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जब इतना सारा डेटा हो तो पर्सन गॉट कंफ्यूज व्हाट टाइप ऑफ डेटा आई नीड टू पुट। अब मेरा नेम नहीं आएगा यहाँ पे, टाइटल आएगा। टाइटल क्या देंगे बुक का, मैं बताता हूँ अभी टाइटल क्या देंगे। अच्छा से देंगे टाइटल बुक का नाम। फिर हमारे पास ऑथर है, ऑथर भी हम देंगे कुछ अच्छा सा। और फिर हमारे पास प्राइस है, तो प्राइस तो हम दे देते हैं मन से। अभी एरर जनरेट करें या नहीं, अभी हम एक बार अच्छे से डेटा पुट कर लेते हैं। प्राइस तो अभी मैंने दे दी 100 रुपये। फिर डिस्काउंट तो अभी दिया नहीं, डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट ले लेगा। और कैटेगरी, कैटेगरी मैंने दे दी, कैटेगरी, कैटेगरी दे दी इसकी अच्छी बात है, थोड़ी सी फिक्शन। फिक्शन, फिक्शन स्पेलिंग है मेरे को एक बुक चाहिए, बुक सजेस्ट मी गुड बुक। गुड बुक, बुक्स गुड। गूगल बुक्स बोल रहा, मैं गुड बुक बोल रहा हूँ, गूगल बुक दे रहा है गुड बुक्स। गुड बुक्स, वन पॉपुलर गुड बुक्स, पब्लिक दे रहा मोबाइल। ओ नो, गुड रीड्स, गुड रीड्स, द हंगर गेम, द हंगर गेम बाय ऑथर यार। इज ऑल द बुक्स। एक चेतन भगत की बुक्स आती हैं, दे आर द टाइटन कर्स बाय पेसी जैक्सन एंड ऑल। चेतन भगत, चेतन भगत बुक्स, ओ चेतन भगत बुक्स। गर्ल वन, हाँ वन इंडियन गर्ल, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट्स, लिख लेता है तो थ्री, वन गर्ल, वन इंडियन गर्ल बाय चेतन भगत। मुझे नहीं पता है फिक्शन, वो फिक्शन मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है ना। अब मैं, आप लिख सकते कुछ भी। वन इंडियन गर्ल, ऑथर हमारे चेतन भैया, चेतन सर, चेतन सर, चेतन सर, सच। कंट्रोल सी कर लो, क्लियर करो। हमारा इधर डेटाबेस में भी देखना पड़ेगा, हमें चेक करते रहना है, इधर भी क्लियर करो। पब्लिक तेरा मुंह, अरे यार मैं ये क्यों गा रहा हूँ। आए क्लियर, इसको यहाँ पे बुक करना होगा। आई नो यू डोंट लाइक माई जोक्स बट व्हाट कैन, हाउ आई कीप माई सेल्फ। स्कीमा नहीं था वो, बुक स्कीमा था। यूजर ने अब दिख रहा हूँ मैं, बुक स्कीमा था। कोई कोई कनेक्टेड तो हो गया, फिर उसके बाद में अच्छा, एरर नहीं। ये एज कुछ नहीं ना, एज यहाँ पे आएगा, प्राइस दूंगा ना तो हो जाएगा। प्राइस, क्योंकि मैंने प्राइस में
एरर आया था प्राइस में। प्रॉपर्टीज अभी नहीं, अभी इसको मैं कमेंट आउट नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैंने इसको चेक नहीं किया ना एरर किस टाइप से है। पर फिर उसको भी करेंगे हम। हाँ एरर फेंका, इसने एरर फेंका। अब एरर क्यों फेंका पता है? क्यों फेंका एरर? रीजन अनडिफाइंड, वही वही। और मिनिमम, अच्छा, वैल्यू चेतन भगत और थर्मो मिनिमम लेंथ। तो यहाँ पे क्या लेंथ ज्यादा है क्या हमारी? मिनिमम लेंथ कितनी थी? 30। स्मेल स्मॉल ऑथर नेम खुदाशाही, प्लीज स्मॉल नेम ऑथर खुदाशाही हमको एरर फेंक के मार रहा है। क्या हमारे ऑथर का नाम इतना बड़ा है क्या? 3 3 6 7 8 9 10 के 10 ही मैंने दे दिया, इसमें 30 दिया यार। इसको बढ़ा देता हूँ मैं। मिनिमम लेंथ को मैं कर देता हूँ 100। अच्छा इतनी लेंथ तो होनी चाहिए मिनिमम लेंथ। मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए ऐसा। मिनिमम 10 तो होनी चाहिए। फिर जो ना पाथ टाइटल, अब मैंने टाइटल में कुछ करा। रिक्वायर्ड टू, टाइटल नहीं दिया मैंने। पाथ टाइटल इज रिक्वायर्ड, और टाइटल में मैं ये इसको टी कर दूंगा। टाइटल हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू है ना, और हमने इधर स्पेलिंग करा देखिए, वो उसको अलग एक फील्ड समझना है, इसलिए अब नहीं आएगा कुछ भी। वन इंडिया का चेतन भगत फिक्शन। हमारा डेटा, अब यहाँ पे हम चेक करते शो डेटाबेस में हमारा एक और डेटा आ गया, हमें जानना। ठीक है, हैव यू एनी एरर? इसको यदि देखना है यहाँ पे एरर तो हम जा सकते थे। टाइटल वाले पे हमारे पास जब एज पाथ काइंड मिनिमम लेंथ फिट। अब जैसे हम एको डेटा पे तो वन इंडियन गर्ल नहीं, वन इंडिया वन गर्ल। ये तो ठीक है, प्राइस इसकी मैंने दे दी बहुत कम, 1 रुपए से भी कम, -1। अब का एरर क्या आएगा? अब का एरर से इतना सी सी एल एस, और यदि मैंने फिक्शन की जगह इसको दे दिया भारत माता की जय, इसको दे दिया मैं स्पेस बुक। हाँ स्पेस बुक, आई लाइक टू रीड स्पेस बुक। या वो सेल्फ हेल्प बुक, सेल्फ हेल्प बुक, self help book. Name me. Have you ever read any of the self help book? I am reading one, The Secret by Rwanda Wilding. I wrote, read. पहले मैंने एक रीड की। वो फिर एरर को मारना नहीं, मेरा रन ही नहीं है कि एरर मार। अरे मारा, हाँ हाँ, सेल्फ हेल्प बुक दे रहा है ना, इनम काइंड इनम कैटेगरी, समझे? एरर आ रहा है ना। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वी लर्न CRUD operation, stabilizing a connection between the MongoDB and our database. Sorry, MongoDB and our backend, performing CRUD operation. We also learn type options and schema validation. Schema validation मतलब क्या? कि हम कुछ ऊपर नीचे वैल्यू देते हैं तो किस टाइप का एरर जनरेट होता है, हम कस्टम एरर कैसे जनरेट कर पा रहे हैं। दिस ऑल आर अबाउट स्कीमा वैलिडेशन। एंड रन वैलिडेटर भी हमने पढ़ा, जब अपडेट करने जाते हैं तो हमें अपडेट में स्कीमा की डेफिनेशन को चेक नहीं देते, तो हम रन वैलिडेटर को ट्रू कर देते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, मुझे भी आज पता चली कि न्यू ट्रू को हटाना पड़ेगा। न्यू ट्रू कब लिखते हैं? जब हमें उस जो हम फाइंड बाय आईडी कर रहे हैं तो उसमें फाइंड बाय आईडी में हमको अपडेटेड देखना चाहिए। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो हमें अपडेटेड डेटा देखने के लिए न्यू टू करते हैं, पर हम जब रन वैलिडेटर लगा रहे हैं अपडेट में तो उसको न्यू टू को हटाना पड़ेगा। दिस ऑल अबाउट टू डिस्कस। थैंक यू, गुड बाय एंड
keep learning.